Jai Hind everyone. My name is Ashish Kumar and I'm here faculty in Ajay Kumar Garg Engineering College Ghaziabad from Department of Computer Science and Engineering. In this series of web designing subject, today's topic is JavaScript event handler. So now JavaScript. As in a previous lecture, we already taught about the HTML, CSS. HTML provides the structure through the CSS. We can formatting the HTML element. Now today's is JavaScript. So basically JavaScript provides the logics or behavior to the HTML code. So in today's lecture we are discussing about the JavaScript event. So what is an event? The change in the state of an object is known as an event. It means suppose this is a ball, right? If you press this ball, the position of this ball is changes from here to here. That means the position of this object is now changes, right? So this is an event occur. A HTML event can be something the browser does or something a user does. In HTML, there are various events which represent the some activity is performed by the user or by the browser. HTML provide the structure, right? But like this is in your browser, this is the button. So on this button, when you click the button, then some event will be occurred or some activity is performed by the user or by the browser. Let us take some examples. An HTML web page has finished loading. This is one example. Another example like HTML input field has been changed. That is an event. Another example, when you click on the button, this certain action is performed. So JavaScript provides the logics or behavior onto the HTML code. So when JavaScript code is included in HTML, it react over these events and allow the execution of the code. This process of reacting over the event is called as a event handling. Thus, JavaScript handles the HTML events by the use of the event handler. So here some of the list and their event handlers are the first events belonging to the mouse event. We will perform each event on the Visual Studio. Mouse events like click event performed and the event handler regarding this event on click event. That means when user click on the mouse, the action will be performed. Some events can be performed. Next is the mouse over and the event handler regarding this mouse over is on mouse over. That means when the cursor of the mouse comes over the elements like suppose this is the paragraph in which write anything like this is Java script tutorial. So here is your mouse
right? Here is your mouse and here is the cursor regarding this mouse. Okay, so when this cursor is comes over the element, which kind of element? This paragraph is the element of an HTML. So the cursor moves over this element, the maybe the color of this paragraph is changed or something, another event can be occurred. So this is an event performed through the mouse over. Similarly, another event like mouse out, on mouse out, when the cursor of the mouse leaves an element, here the cursor is comes from the element, certain event is performed. When the cursor of the mouse leaves an element, that means when the cursor moves from this element, some events is performed. So these are the mouse events: mouse up, mouse move. Now these are the keyboard event and also Windows or document event. Keyboard events means when you press the key, some action or some event is performed, like when the user press and then release the key. That means event handler on key down and on key up, and the performed event is key down and key up. So this event regarding the keyboard. Similarly, some elements regarding the Windows or document event. Window means some event regarding the browser, like event perform load, unload and resize. On event perform load, event handler is the onload. That means when the browser finish the loading of the page, right? Suppose on refreshing the page, loading the page, when you click on some hyperlink, some action is performed, that is also called a onload page, right? Unload, when the visitor leaves the current web page, the browser unloaded. Resize, when the visitor resize the window of the browser. So these events related to the Windows or document events. Right? Another events regarding the form, we already discussed how we can create the form in HTML. Okay, so on the basis of form, here the listing of the events are focus and handler related to this event called as a on focus. That means when the user focuses on an element, right? Suppose here the HTML element, like I am talking this element regarding the form. So form elements like text box, right? This is the text box. So when the user focus on this element, this is the text box element of the form. So when the user focus on element, it's maybe some color of this box will be changed. Submit event, that means when the user submit the form, here this is your form, right? Inside this form there are numbers of input elements like the text box, like the password, like the button called values is the submit button, right? So when the user submit this form, like this form belonging to the user registration, right? So click on the submit button. After filling all these detail, the event occur, right?
when submit the form, that means the user data is now loaded onto the database. So that means on click on the submit button, some action or some event is performed by the user, right? Similarly, in the form element, another event performed like blur and the change. Blur means when the focus is away from a form element. That means if the cursor is belonging to this element, if the cursor is away from this element, that event handler is performed by the on blur. Similarly, next event is the change. That means when the user modifies or changes the value of a form element. Change element, as name suggests, that means you will be perform some modifications onto the form element or HTML element. Okay, this event in the VS Code. So as I already told you, it is an editor in which we can perform the coding. So let us take an example. Suppose now I am performing the on click event, and this event belonging to the mouse. So name as mouse event dot html, right? So VS provides the emit abbreviation. We have using the shortcut like shift F1 and press the enter. So automatically codes are generated, right? So our title that is on click event, right? So जितने भी हमारे जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम स्क्रिप्ट टैग्स के अंदर रखते हैं, ठीक है? तो here is the tag belonging to the HTML called as a script tag, right? जो आपका स्क्रिप्ट टैग है वो स्क्रिप्ट टैग या तो आप हेड सेक्शन में उसको इंप्लीमेंट करेंगे या आप उसको बॉडी सेक्शन में इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है? सपोज मैं बॉडी सेक्शन में इंप्लीमेंट करता हूं, तो मैंने क्या लगाया स्क्रिप्ट, राइट? तो ये आपका स्क्रिप्ट टैग हो गया, ठीक है? अब कोई इवेंट हमें परफॉर्म कराना है, राइट? कोई हमें फंक्शन परफॉर्म कराना है किसी ऑन क्लिक इवेंट पर, राइट? तो उसके लिए क्या होगा, हमें एक वी हैव टू इनिशियलाइज द फंक्शन लाइक, तो फंक्शन, ठीक है? जैसे अगर हम एग्जांपल लें सी में या आप और भी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम फंक्शंस डिफाइन करते हैं, तो सिमिलरली स्क्रिप्ट में भी आपका एक फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं और उस पर हम जो भी प्रोसेस होता है वो फॉलो करते हैं, ठीक है? तो फंक्शन लाइक क्लिक इवेंट, ये मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है? So inside this function body, what you have to produce the output. So let us say for printing the output on the browser, the predefined function name as the document dot write. So document dot write से आप ब्राउजर की जो बॉडी है वहां पर आप आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है? सो लाइक दिस इज एंड जब हमें कोई ऑन क्लिक इवेंट परफॉर्म कराना है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि व्हेन यू क्लिक ऑन द सबमिट बटन द इवेंट हैज बीन परफॉर्म्ड. सो फॉर क्रिएटिंग द बटन जितने भी एलिमेंट है वो किस में लाई करेंगे, फॉर्म में. तो हमें एक फॉर्म टैग लेना पड़ेगा.
और इस फॉर्म टैग में बटन क्रिएट करने के लिए हमें किस एलिमेंट का यूज करना है। जैसे मैंने HTML की जो मेरी ट्यूटोरियल जो था, ट्यूटोरियल जिसपे हमने लेक्चर्स प्रोवाइड करे हैं, जिसमें हमने HTML फॉर्म क्रिएट किया था, आप वहां से देख सकते हो। तो यूजिंग द इनपुट टाइप, राइट, सो इनपुट एलिमेंट, तो वी हैव टू डिफाइन द बटन। सो बटन कैसे हम डिफाइन करेंगे, टाइप एट्रीब्यूट से। तो टाइप इज इक्वल टू क्या है, ये हमारा बटन, ठीक है। नाउ अब बटन इनपुट टाइप बटन बन जाएगा, ठीक है, बट हमें तो एक्शन परफॉर्म कराना है, हमें तो इवेंट परफॉर्म कराना है ना। सो फॉर परफॉर्मिंग द इवेंट वी हैव टू मेंशन द इवेंट हैंडलर नेम, एंड द इवेंट हैंडलर नेम क्या था, ऑन क्लिक। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ऑलरेडी एमिट कर रहा है VS कोड, तो यहाँ पर ऑन क्लिक आपका इवेंट है, और ऑन क्लिक इवेंट में क्या परफॉर्म हो, ठीक है। तो अब हमने ऑलरेडी यहां पर एक फंक्शन हमने डिफाइन कर रखा है क्लिक इवेंट के नाम से, राइट। जब हम बटन को प्रेस करें, कोई एक्शन परफॉर्म हो, कोई फंक्शन परफॉर्म हो, तो उस फंक्शन को कहीं ना कहीं हमें कॉल करना पड़ेगा, तभी तो वो फंक्शन परफॉर्म होगा। सो इवेंट हैंडलर ऑन क्लिक में हमें उस फंक्शन का नेम देना पड़ेगा। तो फंक्शन का नेम क्या है हमारे, क्लिक इवेंट, यही तो फंक्शन का नेम है, राइट। और अभी तो ये इनपुट टाइप बटन से सिर्फ बटन क्रिएट हुआ है, बट उस बटन की कुछ ना कुछ हमें वैल्यू देनी पड़ेगी। सो वैल्यू रिगार्डिंग दिस बटन लाइक क्लिक मी, राइट, एंड क्लोज द इनपुट एलिमेंट। सो फॉर्म एलिमेंट हो गया, ये हो गया, और हमारा पूरा। सो ये एक कोड हो गया ऑन क्लिक में। अब हम इसको परफॉर्म करते हैं, देखते हैं ये रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो एज यू कैन सी दी, हमारा ये ब्राउजर की विंडो है। अब ब्राउजर की विंडो पे हमने इनपुट टाइप से क्या बनाया, एक बटन बनाया जिसकी वैल्यू हमने क्लिक में कर रहे हैं। अब देखें, यानी कि व्हेन यू क्लिक ऑन दिस बटन सम एक्शन इज परफॉर्म्ड, दैट इज कॉल्ड एज एन जावास्क्रिप्ट इवेंट। नाउ क्लिक करते हैं, देखा। सो दिस इज एन ऑन क्लिक इवेंट। जैसे ही मैंने क्लिक करा और आपकी ब्राउजर की विंडो पर क्या आ गया, दिस इज एन ऑन क्लिक इवेंट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेते हैं हम इसका। यहां पर क्या है, क्लिक इवेंट है जिसमें हम ऑन डबल क्लिक एक यूज कर रहे हैं, राइट। सो आप यहां पर देखो, मैंने एक फंक्शन बनाया माई फंक्शन के नेम से, इन विच वी हैव टू राइट द डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, दैट इज द डोम, in which when user double click on the button, that means trigger a function, and the function is called whatever written in this function, that is produced as a output. Now let us rendering this code, right. Double tick to trigger a function. So when you double click, so hello world is as a output आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक माउस इवेंट था। नाउ एक हम अनदर एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम माउस ओवर इवेंट करते हैं। तो उसके लिए हमें एक फिर से माउस ओवर इवेंट नाम से हम एक फाइल क्रिएट करते हैं। सो वो फॉर सेम यूजिंग द shift 1 emit abbreviation, automatically code is produced on this VS Code, right. So our title is mouse over event, okay. So inside the body, which tag I am using for writing the JavaScripting program, that is the script tag, right.
So here is the script tag. Inside this script tag, we have to perform some logics called as a function. So we have to define the function. Now function name like कुछ भी नाम रख सकते हैं, like mouse event हम mouse over करा रहे हैं तो mouse over event, ये एक मेरा फंक्शन बन गया. So inside the mouse over event function, like using the different kind of dialog box, इस टाइम हम alert यूज कर रहे हैं. ठीक है, so alert ये पॉपअप बॉक्स है, आप डिस्प्ले करा सकते हो. जैसे कि मैंने document.object उससे यूज document.write से ब्राउजर के पे डिस्प्ले कराया था. अब इस टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं पॉपअप से डिस्प्ले करा रहा हूँ. सो अलर्ट, इन अलर्ट like what you display on the pop-up. So message, so message is the, this is mouse over event, right? And okay, so mouse over event हम किस पे करा रहे हैं, जब mouse over event हम करा रहे हैं तो किसी न किसी हम HTML एलिमेंट पे करा रहे हैं. तो let us take an HTML एलिमेंट, like मैं पैराग्राफ ले रहा हूँ. ठीक है, सो पैराग्राफ में अब इवेंट परफॉर्म कराना है तो उसके लिए इवेंट हैंडलर हम लेंगे रिगार्डिंग द माउस ओवर इवेंट. तो इवेंट हैंडलर जो था, इसको एक बार फंक्शन को मैं स्पेस नहीं देगा क्योंकि एरर दे रहा है, माउस ओवर से कर लेते हैं. ठीक है, सो इवेंट लाइक नेम क्या आएगा इवेंट हैंडलर का, ऑन, जैसे आप देख रहे हो ऑन बोर्ड, ऑन ब्लर, ये आपके डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट हैंडलर है. तो मुझे कौन सा इवेंट चाहिए, मुझे माउस के रिगार्डिंग चाहिए. सो ऑन माउस, आपको दिख रहा है यहाँ पर ऑन माउस ओवर आ रहा होगा, ये रहा है ना. सो ऑन माउस ओवर, अब फंक्शन बन गया तो फंक्शन को कॉल करना है. तो फंक्शन को जब कॉल करना है तो उसका नेम हमें डिफाइन करना पड़ेगा. तो ऑन माउस ओवर पर हमारा फंक्शन का नेम क्या है, माउस ओवर इवेंट, राइट. ठीक है, सो अब ये पैराग्राफ, इसमें कुछ हमें सेंटेंस तो लिखना पड़ेगा तभी तो पैराग्राफ दिखेगा. तो फॉर दैट पर्पस लाइक कीप कर्सर ओवर टू मी. ठीक है, ये हमारा पैराग्राफ हो गया. बॉडी होगी, कंट्रोल एस करते हैं. नाउ लेट अस, ठीक है, जैसे ही मैं क्या करा वहां पर ले गया तो आपका एक इवेंट हो गया, ये पापा हो गया, अलर्ट हो गया. सो दिस इज ए माउस ओवर इवेंट, राइट. सिमिलरली माउस ओवर का और एक मैं आपको प्रोग्राम दिखा रहा हूं. ठीक है, यहां पर क्या है, मैंने ये हेडिंग पर किया है. ठीक है, सो हेडिंग में क्या कर रहा है, हाँ यहाँ पर माउस ओवर भी हो रहा है, माउस आउट इवेंट भी अकर हो रहा है. तो अभी आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पर HTML एलिमेंट जो यूज किया है वो H1 लिया है. ठीक है, तो ऑन माउस ओवर में मैंने क्या करा है, जैसे ही मैं अवे कर रहा हूं तो उसका कलर चेंज हो जाए रेड, और जब मैं ले जा रहा हूं तो रेड, और जब मैं ऑन माउस आउट कर रहा हूं तो उसका कलर क्या हो जाए, ब्लैक. सो हियर इज द हेडिंग रिगार्डिंग द H1, दैट इज होवर मी फॉर चेंजिंग द कलर. नाउ चेक हाउ दिस कोड इज वर्क. होवर मी फॉर चेंजिंग कलर, दिस टाइम क्या है कि अभी माउस आउट है तो ब्लैक कलर चेंज, जैसे ही मैं इस पे ले जाऊंगा तो क्या हो गया, कलर चेंज हो गया. तो होवर मी फॉर चेंजिंग कलर. ठीक है, तो समझ में आया. ये दिस इवेंट क्या है, ऑन माउस आउट एंड ऑन माउस ओवर इवेंट. ठीक है, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल रिगार्डिंग द ऑन फोकस इवेंट. हम विंडो के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं तो ऑन फोकस इवेंट. सो ऑन फोकस इवेंट के लिए फर्दर वी हैव टू क्रिएट न्यू फाइल नेम एज ऑन
focus event dot html. ठीक है, सेम प्रोसीजर फॉलोड. टाइटल इज that is on focus event, right? And inside the body we have to write the script tag. Inside the script tag we have to define the function, like function, and the function name is like focus event, right? Focus function, focus event. ऑन लोड इवेंट मेरे पास अगर है तो मैं आपको वो कोड दिखाता हूँ. ठीक है, तो ऑन फोकस इवेंट के ऑन लोड, देखिए मेरे पास ऑन लोड इवेंट का है. सो दिस इज द ऑन लोड इवेंट, दैट मीन्स वी हैव टू लोड दी फाइल. सो फंक्शन मैंने बनाया लोड इमेज के नाम से. प्रोसीजर वही है, अगर आप ऑन फोकस में करेंगे तब भी आपका फंक्शन ये डिफाइन करना पड़ेगा, और बॉडी के अंदर आपको डिफाइन करना पड़ेगा ऑन लोड, क्योंकि बेसिकली कुछ फंक्शन हमारे जो विंडो के होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर यूज होते हैं. ठीक है, तो यहाँ मैंने फंक्शन लोड इमेज बनाया, और मैंने इस टाइम जो डिस्प्ले करा रहा हूँ वो एज अलर्ट करा रहा हूँ, और इमेज में मैंने फाइल का एक एसआरसी दे रखा है जो कि वो इमेज लोड हो जाए, जो उसकी हमने विड्थ और हाइट डिफाइन करे. ठीक है, मैं इसको लोड करके दिखा रहा हूँ. सो ठीक है, तो इमेज अलर्ट हो गया. तो जैसे ही यहाँ पर आपकी एक इमेज आई, दिस इवेंट नोन एज द ऑन लोड इवेंट. ठीक है, नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल लाइक ऑन सबमिट. ठीक है, ऑन सबमिट इवेंट है, तो ऑन सबमिट इवेंट का मैं देखिए यहाँ पर मैंने बना रखा है ये कोड. फंक्शन को मैंने डिफाइन करा. अब यहाँ पर क्या है, मैं फंक्शन का कोई मतलब जो नेम है मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ. ठीक है, तो जब भी यूजर इनपुट जो भी नेम करेगा वो एक अलर्ट कर देगा. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑन सबमिट में कंफर्म इनपुट करने के बाद नेम वो जब इनपुट करेगा, जब सबमिट पे क्लिक वो कहीं ना कहीं रीडायरेक्ट हो जाएगा. एग्जाम्पल से समझाता हूँ. ठीक है, अब एंटर योर नेम, मैं कुछ नेम लिखता हूँ लाइक आशीष. ठीक है, जैसे ही मैं सबमिट करूंगा दैट मीन्स इवेंट इज परफॉर्म. अब ये रीडायरेक्ट कर देगा. रीडायरेक्ट कहाँ करेगा, देखिए रीडायरेक्ट एक्शन कहाँ परफॉर्म होगा, टारगेट वैल्यू क्या रहेगी उसकी, AKGC, क्योंकि मैंने जो यहाँ पर जो टारगेट एक्शन डिफाइन कर रखा है वो AKGC की वेबसाइट पर डिफाइन कर रखा है. ठीक है, सो अलर्ट में अब ये मैसेज प्रिंट होगा, हेलो आशीष, यू विल नाउ बी रीडायरेक्ट टू द www.akgec.ac.in. देन हियर. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ऑन लोड इवेंट. Now let us take another example on mouse up and event. My function read on mouse up, the function become green, color become green. That means जैसे ही हम यहाँ पर था, अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं. ठीक है, अभी इसका कलर ब्लैक हो रखा है. ठीक है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इवेंट नेम एज ऑन माउस अप एंड डाउन. नाउ अनदर एक हम कीबोर्ड का इवेंट कर लेते हैं. उसके लिए हम एक नई फाइल बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं की डाउन इवेंट, राइट, .html. सो शिफ्ट एंड द टाइटल इज की डाउन event, right? So inside the body, using the script tag, we have to define the function name as a function key down, right? So function define हो गया. function के अंदर like document dot get element by id, get element by id. So id get element by where is the, so enter something here, you can press any key then alert is present. So okay, so basically problem is that कि यहाँ पर मैंने क्या सेमी कॉलन, वो जो पैरेंथेसिस था वो कॉल फंक्शन का की डाउन था,
तो वहाँ नहीं लगाया था, इस वजह से ये कोड दिक्कत कर रहा था। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे कर दिया, दैट मीन्स जैसे ही मैंने इनपुट टैब में आप कोई भी की प्रेस करेंगे, क्योंकि यहाँ इवेंट हैंडलर परफॉर्म हो रहा है ऑन की डाउन। सो फंक्शन मेरा नाम क्या है, की डाउन का, ये यहाँ पर है सिमिलर, आप देख पा रहे हो कि ये जो की डाउन है ये यहाँ पर ये वाला फंक्शन और ये फंक्शन सेम होना चाहिए। फंक्शन जब कॉल करेंगे तभी तो फंक्शन कॉल होगा, जब फंक्शन कॉल होगा तो वो कर्सर हमारा कंसोल इस फंक्शन में जाएगा और जो भी हमारा अलर्ट होगा या जो भी हमारे इसमें इनपुट्स होंगे वो हमारे डिस्प्ले हो जाएंगे। सो एज यू कैन सी, मैं जैसे ही कोई की प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पर एक इवेंट हुआ है। सो दिस इज एन कीबोर्ड इवेंट। सो this is all about the JavaScript event. Thank you.